مشرق وسطی میں پھر جنگ کے بادل، ایران کے کویت پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد دفاعی نظام فعال، علاقے میں سارن بج اٹھے، حملوں کو ناکام بنانے کے دوران دھماکے سنے گئے، کویتی فوج کا بیان، امریکی حملوں کے لیے استعمال ہونے والے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ، جزیرے سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر بھی میزائل داغے گئے، امریکی سینٹ کام کے مطابق حملے میں کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا، جنگی طیاروں نے ایرانی فضائی دفاعی نظام اور ڈرون تباہ کر دیے، گورک اور قوشن جزیرے میں ریڈار اور کمانڈ مراکز پر دفاعی حملے کیے گئے۔ ایران نے کویت کے جزیرے سرک میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق سرک جزیرے کے قریب امریکی ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی میزائل پر تحریر تھا، آخری امریکی فوجی کے انخلا تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ ایران معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے، یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا بیان، کہا معاہدہ امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے لیے بہتر ہوگا، ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ بلا وجہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، میرے لیے کام کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب سیاسی مخالفین شور مچاتے ہیں، سیاسی مخالفین مختلف و متضاد مشورے دیتے رہتے ہیں، وہ کبھی مذاکرات تیز کرنے اور کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں، امریکی صدر نے مخالفین سے کہا وہ پرسکون رہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکی اڈوں پر حملے حق دفاع کے طور پر کیے گئے، اسماعیل بقائی کی جانب سے ایسا کہا گیا، جو اڈے ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہوں گے انہیں نشانہ بنایا جائے گا، ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، ایران کے خلاف یورپی یونین کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے، اسماعیل بقائی کا یہ بھی کہنا تھا، یورپ الزام تراشی سے گریز کرے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا، تو امریکی اڈوں پر حملے حق دفاع کے طور پر کیے گئے، اسماعیل بقائی ایسا بتا رہے ہیں، جو اڈے ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہوں گے انہیں ہم نشانہ بنائیں گے، ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، ایران کے خلاف یورپی یونین کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے، اسماعیل بقائی کا ایسا بتانا ہے، یورپ الزام تراشی سے گریز کرے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ایسا کہنا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم سرچارج کے ذریعے مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار، حکومت نے عوام پر بھاری بوجھ ڈالنے کا پلان تیار کر لیا ہے، 5 سال کے دوران غریب عوام کی جیبوں سے 10,780 ارب روپے نکالنے کا منصوبہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سما کے بیورو چیف شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شکیل بتائیے گا، کیا IMF کو بھی یقین دہانی کرا دی گئی ہے؟ دیکھیں، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات خصوصاً پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرنے والے صارفین پر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سما نے دستاویزات حاصل کی ہیں جس کے مطابق اگلے 5 سال میں وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر سرچارج یا لیوی کی مد میں صارفین سے 10,780 ارب روپے وصول کرے گی۔ پچھلے 5 سال کے دوران اس مد میں 4,493 ارب روپے وصول بھی کیے جا چکے ہیں، تو مجموعی طور پر 2021 سے لے کر 2031 تک 16,000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں عوام کی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے، جس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا ملک کے اندر، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹ کرائے بڑھیں گے، اور IMF کے ساتھ جو پلان شیئر کیا گیا ہے اور اس کے مطابق 5 سال کا پورا بریک اپ دیا گیا ہے۔ پہلے سال 1,727 ارب روپے پیٹرولیم سرچارج یا لیوی وصول کی جائے گی، یعنی اگلے مالی سال 2026-27 میں، اور اس سے اگلے سال یہ بڑھ کر 2,131 ارب ہو جائے گی، پھر 1,915 ارب روپے، اور چوتھے سال یہ بڑھ کر 2,370 ارب روپے، اور پھر 2,637 ارب تک پہنچ جائے گی آخری سال۔ تو آن ایوریج ہر سال 2,156 ارب روپے عوام سے پیٹرولیم سرچارج یا لیوی کی مد میں وصول کیے جائیں گے، عوام کو اضافی قیمت ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ FBR جو ہے وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر رہا۔ اس سال بھی پہلے 11 ماہ میں کوئی 866 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا ہے، اگلے سال بھی بڑا ہدف رکھا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ پورا نہ ہوا تو اس کا جو پورا کیا جائے گا کمی جو ہے، شارٹ فال جو ہے، وہ عوام سے نان ٹیکس ریونیو یعنی پیٹرولیم لیوی یا سرچارج کی مد میں رقم وصول کر کے اس کو پورا کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سندھ حکومت نے مالی سال 2026 اور 27 کے لیے سالانہ ترقیاتی بجٹ کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ مجوزہ مجموعی سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 900 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 522 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، قاضی حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی قاضی حسن، تو بتائیے گا کیا تجویز سامنے رکھی گئی ہے؟
जी, सूबे में जो मजमूई सालाना तरक्याती बजट जो है तकरीबन 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ रखी गई है और रवा माली साल यही मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हजम तकरीबन 1018 अरब रुपए था और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मख्सूस करने की तजवीज़ रखी गई है, जबकि रवा माली साल यही सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 520 अरब रुपए था। जबकि गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले जो तरक्याती मनसूबे के लिए 296 अरब रुपए रखने की तजवीज़ रखी गई है, जबकि रवा माली साल यही रकम जो है 367 अरब रुपए थी। जबकि पब्लिक सेक्टर में जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके तकरीबन 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ रखी गई है, जबकि रवा माली साल यही रकम 76 अरब रुपए थी। तो इसी तरह मजमूई तौर पे जो रवा माली साल जो है सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए भी रकम जो है वो 55 अरब रुपए से कम करके आइंदा माली साल के लिए 50 अरब रुपए की तजवीज़ रखी गई। जी बहुत शुक्रिया काजी हसन, आपने अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिलावल भुट्टो जरदारी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, हुमायूं खान और नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज ज़िला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू, चिलास, गजर और गिलगित में भी जलसों से खिताब शेड्यूल है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 GBA 12 शिगर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिगर में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां किन मराहिल में है और जलसा गाह में कारकुनों का जोशो खरोश कैसा है, बात करेंगे मंजूर नाज से। जी मंजूर, जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। GBA 12 शहर की बात करें तो यहाँ पे भी सियासी पारा हाई है। जो सियासी पार्टियाँ हैं वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए उनको मोबिलाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कैंपेन चलाने में मसरूफ़ है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शिगर का एक रोज़ा अहम दौरा करेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। इस हवाले से इस वक्त हम गुलाबपुर शिगर में मौजूद है। उस जलसे की क्या तैयारी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर इमरान नदीम साहब। बिलावल साहब आज मेरे गाँव आ रहे हैं मेरे लिए और मेरे गाँव वालों के लिए एजाज़ की बात है। मुल्क का मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म एक छोटे से गाँव में आ रहे हैं और यहाँ जलसे से खिताब करेंगे। तो यकीनन इलेक्शन कैंपेन के हवाले से है और कोशिश करेंगे वो अपने पार्टी के मंशूर और पार्टी के हवाले से इस इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शिगर में आज अपने पार्टी मंशूर का ऐलान कर। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुँच गए हैं। एक्स पैगाम में लिखा है कि ये इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जिद्दोजहद नहीं बल्कि जमहूरियत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लिखा कि वो बानी का पैगाम हर शहर, कस्बे और गाँव तक पहुँचाने आए हैं। माशरे के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों से राब्ते में हैं और माशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट हासिल करने के ख्वाहां हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात का फाइनल राउंड शुरू। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। समा के नुमाइंदे टिक्का खान सानी इस वक्त GBA 1 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शफीकुद्दीन के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा। गिलगित शहर में हल्का GBA 1 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मेरे साथ मौजूद, जो कि पहली दफ़ा इंतखाबात के मैदान में उतरे हैं। इस्लामाबाद के वानों में तो नज़र आते थे और यहाँ हमें ये कैंपेन करते नज़र आए। शफीकुद्दीन साहब, इनसे हम बात करेंगे। पहली दफ़ा मुहिम, मुकाबला बड़ा सख्त, आपको क्या कामयाबी यकीनी है? इंशाल्लाह 7 जून को आप देखेंगे एक तारीखी फतह होगी। इंशाल्लाह कम से कम 3000 की लीड से हम इस इंशाल्लाह फतह करेंगे। पहले तजर्बा नहीं था आपका कैंपेन का, इस दफ़ा कैंपेन पे निकले हैं, क्या क्या आपको नज़र आ रहा है? सर, पहले मैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में लड़ता था,
अल्लाह का शुक्र एक तजुर्बा तो एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए। मेरे ख्याल में मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ कि जिसको लोग खुद बुलाते हैं, मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ जिसको लोग खुद वेलकम करते हैं। बाकी उम्मीदवार तो दरवाज़ों पे जाके मिन्नत समझते कर रहे हैं। आप अपना सर्वे करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस पूरे हल्के में आप एक सर्वे करें। 7 जून एक तारीखी दिन होगा, एक सुनहरा दिन, क्योंकि बाकी रह गया है और इस वक्त कैंपेन जो है पूरे अरूज पर है। जी, आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी के मुतालबात पर मामलात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वफाकी हुकूमत की टीम ने सियासी और आइनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हल तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइए क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, जो हुकूमती कमेटी थी उसमें राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कारा, राना साउंड और एहसन इकबाल ने जो एक्शन कमेटी थी उसकी क़यादत से मुज़ाकरात किए। सियासी क़यादत और मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही है और ज़रा का कहना है कि महाजरीन नशिस्तों के खात्मे, रद्द-बदल या नई हुकूमतियों पर भी गौर किया गया। मुतनासिब नुमाइंदगी और इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ भी ज़ेर गौर और 33 हल्कों में इंतखाबात कराने की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। महाजरीन नशिस्तें बरकरार रखते हुए महदूद इस्लाहात का ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के आइनी और इंतखाबी जो मामलात हैं उस पर हतमी फैसले इस्लामाबाद में होंगे और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ मुशावरत की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी और एक्शन कमेटी के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात पर जो हतमी फैसला है वो वफाकी हुकूमत ने ही करना है। तो चूँकि इस आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी के मुतालबात पर फैसला कुन मरहले में ये मामला दाखिल हो गए और आज़ाद कश्मीर के मामले पर सियासी और आइनी माहिरीन से मशावरत जो है वो भी मुकम्मल कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मुनशियात के मुकदमात में नामजद मुलजिमा अनमोल और पिंकी को इलाज के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का ये मामला है। SSP कोर्ट पुलिस कराची रीजन ने सेंट्रल जेल हुकाम को मरासला इरसाल कर दी है। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के रूबरू पेश अदालत से मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त कर दी है। मजीद बात करेंगे लियाकत अली राना से। लियाकत, बताइएगा मरासले में क्या लिखा गया? देखें, SSP कोर्ट पुलिस ने ये मरासला लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि मुल्ज़िमा संगीन नोयत के मुकदमात में मुलव्विस है। अगर उसे ट्रीटमेंट के लिए या तिबी मुआयने के लिए SIUT हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, लिहाजा मुल्ज़िमा को जेल में ही इलाज की सहूलत फराहम की जाए। इसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाकर उसका जेल में महफूज जगह पर इलाज कराया जाए। और SSP सिक्योरिटी ने मुल्ज़िमा को जेल मुंतकली के मौके पर सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। उनका कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, उसको हम स्क्वाड फराहम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुल्ज़िमा को अब जेल में ही उसका इलाज होगा। दूसरी जानिब विमेन जेल की सुपरिटेंडेंट अदालत में दरख्वास्त की है कि वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा और साबिक़ वज़राए आला आमने सामने आ गए हैं। PTI पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आला KP ने कुछ पैगामात में बगैर किसी का नाम लिए मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, जिस पर साबिक़ वज़ीर आला ने जवाब दिया कि जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका नाम भी लो। अगर कोई बानी के खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसका बताया जाए। अली अमीन गंडापुर ने तंज करते हुए कहा कि अपना सूबा कंट्रोल हो नहीं रहा, दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त इक़दाम नहीं।